Dear students, welcome to my online class. Jyoti Diwan is presenting a beautiful one-act play, The Browning Version by Terence Rattigan. Let us read about the author of the play. Sir Terence Morwin Rattigan was born on 10th June 1911 in South Kensington, London. He was a British dramatist and a mature screenwriter. His plays are typically set in an upper middle class background. He died in 30th November 1977 in Hamilton. In the years since his death, his work has been reappraised and he is now rightfully regarded as one of the greatest British playwrights of the 20th century. The Browning version is viewed as one of his best works. While Rattigan served in the Royal Air Force during World War II, he continued to write plays, producing about one a year until the early 1960s. Let me introduce you to the play. This chapter is a short extract from the play The Browning Version, written by Terence Rattigan. It is a one-act play set in a school. There are three characters in the play: Tupelo, Frank, and Mr. Crocker Harris. Tupelo is a 16 years old student, Frank is a young teacher, and Mr. Crocker Harris is a middle-aged schoolmaster. स्कूल में एक वन एक्ट प्ले का सेट लगा है. तीन मेन कैरेक्टर्स हैं: टेप्लो, फ्रैंक एंड मिस्टर क्रॉकर हैरिस. टेप्लो एक 16 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट है, फ्रैंक एक यंग टीचर हैं और मिस्टर हैरिस एक मिडिल एज्ड स्कूल मास्टर हैं. दिस प्ले हाईलाइट्स द एटीट्यूड ऑफ अ टीनेज स्टूडेंट टुवर्ड्स हिज टीचर. हिज कमेंट्स आर शॉकिंग because they are very close to reality. He imitates the voice of Mr. Crocker Harris. He calls the man almost inhuman. He is mortally afraid of his teacher. His promotion depends on the whim or goodwill of his teacher. But he opens up when the other science teacher encourages him to do so. He hates the Greek play because he doesn't like the teacher's method of teaching. Mr. Crocker Harris seems to hate people in order to make them like him. The description of the teacher is damaging. It reflects upon the hopeless quality of teachers. ये प्ले हाईलाइट करता है कि एक टीन एज स्टूडेंट के साथ उसके टीचर का बिहेवियर कैसा है. लेखक के अनुसार बहुत सी बातें स्टूडेंट की रियलिटी के करीब हैं. वो टीचर की नकल भी लगाता है, उसकी आवाज़ की नकल भी करता है. उसको अपने टीचर मिस्टर हैरिस इनह्यूमन लगते हैं, यानी इंसानियत नहीं लगती अपने टीचर हैरिस में. उसकी नेक्स्ट क्लास की प्रमोशन उसके टीचर की इच्छा पर टिकी है. बट उसे जब मिस्टर फ्रैंक मिलते हैं तो वो थोड़ा कंफर्टेबल दिखता है उनके सामने. उसे एनकरेज करते हैं मिस्टर फ्रैंक. टप्लो कहता है कि वो ग्रीक प्लेस को इसलिए पसंद नहीं करता क्योंकि मिस्टर हैरिस का पढ़ाने का तरीका उसे पसंद नहीं. मिस्टर हैरिस लोगों को अपने जैसा बनाने के लिए उनसे नफरत करते हैं. होपलेस क्वालिटी दिखाई गई है इसमें टीचर की. नाउ वी शैल रीड द समरी ऑफ द प्ले इन डिटेल. द ब्राउनिंग वर्जन प्रेजेंट्स अ कन्वर्सेशन between a lower 5th grade student Tupelo and Mr. Frank, a teacher from the school where Tupelo studies. From their conversation, we come to know that Tupelo is there to do extra work, extra duty as punishment for his teacher, Mr. Crocker Harris. According to Tupelo, Mr. Crocker Harris is a different kind of a teacher. इस प्ले में स्टूडेंट टप्लो और मिस्टर फ्रैंक के बीच की बातचीत दिखाई गई है. उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि टप्लो अपने टीचर मिस्टर हैरिस के लिए एक्स्ट्रा काम कर रहा है पनिशमेंट के तौर पर. टप्लो के अनुसार मिस्टर क्रॉकर हैरिस एक अलग तरह के मास्टर हैं. द सीन इज सेट इन अ स्कूल वेयर टप्लो अराइव्स टू डू एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे फॉर मिस्टर क्रॉकर हैरिस बिकॉज he had been ill for a day during the week and missed the class. While other students have left after school time, Tupelo has to stay behind.
His teacher, Mr. Crocker Harris, has told him that he would come at 6:30 and see the work done by him. It's already 6:40 and Mr. Crocker Harris hasn't come yet. Taplo studies in the lower 5th standard and is about to get his result from his teacher, Mr. Harris. Mr. Crocker Harris usually reveals the result on the last day of the school, and unlike every other teacher, he follows the rules and regulations strictly. सेट में स्कूल का सीन दिखाया गया है जिसमें टपलो को एक्स्ट्रा काम दिया गया होता है क्योंकि लास्ट वीक बीमार होने की वजह से वो एक दिन स्कूल नहीं आ पाया था। सारे स्टूडेंट्स चले गए हैं। टपलो के टीचर मिस्टर हैरिस ने उसे बोला था कि वो 6:30 पर उसका काम देखने आएंगे, बट अब तो 6:40 हो गए हैं, वो अभी तक नहीं आए। 5th क्लास का स्टूडेंट टपलो मिस्टर हैरी से अपना रिज़ल्ट पूछना चाहता है जो मोस्टली स्कूल के लास्ट डे पर बता दिया जाता है बच्चों को, बट लेखक कहते हैं कि दूसरे टीचर्स के बिल्कुल उलट मिस्टर हैरिस रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। टपलो फाइंड्स फ्रैंक, a science teacher in the school. Frank sees Tuplo waiting for Mr. Crocker Harris. He asked him his name and the reason he is there that day. He tells Tuplo that he should go because Mr. Crocker Harris hasn't arrived so far. But Tuplo doesn't dare to do that. Frank feels jealous to see that students hold Mr. Crocker Harris in such fear. He encourages Tuplo to make fun of Mr. Crocker Harris. They both started having a conversation where Frank asked him several questions. We don't see Mr. Crocker Harris in the whole chapter, but we get to know a lot about him. टपलो को साइंस टीचर मिस्टर फ्रैंक मिल जाते हैं। मिस्टर फ्रैंक टपलो से उसका नाम और उसके वहाँ रहने का रीज़न पूछते हैं। वो टपलो को कहते हैं कि उसे चले जाना चाहिए क्योंकि मिस्टर हैरिस अभी तक नहीं आए हैं, बट टपलो को ऐसा करने की, वहाँ से चले जाने की हिम्मत नहीं पड़ती। मिस्टर फ्रैंक जेलस फील करते हैं कि मिस्टर हैरिस किस तरह से अपने स्टूडेंट्स को डरा कर पकड़ रखते हैं। वह टपलो को मिस्टर हैरिस का मजाक उड़ाने के लिए उकसाते हैं। उन दोनों की कन्वर्सेशन में मिस्टर फ्रैंक ने टपलो से बहुत क्वेश्चंस किए। स्टूडेंट्स लुक, हम इस वन एक्ट प्ले में मिस्टर हैरिस को नहीं देख पाते, बट फिर भी उनके बारे में बहुत कुछ जान जाते हैं। कुछ डिस्क्रिप्शन हमें मिस्टर हैरिस का प्ले के लेखक ने दिया और कुछ हमें मिस्टर फ्रैंक और टपलो की बातचीत से पता चल जाता है। टपलो वांट्स टू टेक साइंस एज अ रिमूव बिकॉज ही फाइंड्स द सब्जेक्ट एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। फ्रैंक ऑन द अदर हैंड doesn't like what he teaches in the school. Mr. Crocker Harris is hardly human as he never shrivels up. Frank told Tuplo that he will get what he deserves, nothing less and nothing more, and this makes him tensed. Tuplo next class की प्रमोशन के बाद साइंस एज सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है क्योंकि साइंस में उसे बहुत इंटरेस्ट है, बट ऑन द अदर हैंड मिस्टर फ्रैंक को वो सब नहीं पसंद जो उन्हें उस स्कूल में पढ़ाना पड़ता है। मिस्टर हैरिस के लिए लेखक ने हार्डली इनह्यूमन वर्ड्स यूज़ किए हैं जिनका मतलब है कि मिस्टर हैरिस शायद ही इंसान है। लेखक के इन वर्ड्स से हम जान पाते हैं कि मिस्टर हैरिस एक इमोशनलेस इंसान है जो कभी मुरझाते नहीं। फ्रैंक ने टपलो को यकीन दिलाया, आश्वासन दिलाया कि टपलो को डेफिनेटली वो सब मिलेगा जो वो डिज़र्व करता है, ना कुछ कम ना कुछ ज़्यादा। ये बातें टपलो को टेंशन भी देती हैं। टपलो फर्दर इमिटेट्स मिस्टर हैरिस ट्वाइस इन फ्रंट ऑफ फ्रैंक। फ्रैंक एडमिट्स that he envies Mr. Crocker Harris because of the effect he has on them. Tuplo told Frank that he never shows his emotions like other teachers and never beats them up like other masters. He is not a sadist. Tuplo मिस्टर फ्रैंक के सामने मिस्टर हैरिस की नकल लगाता है। मिस्टर फ्रैंक मानते हैं कि वो मिस्टर हैरिस से
इस बात पर जेलिस होते हैं कि उनका बच्चों पर कितना गहरा असर होता है। टेप्लो मिस्टर फ्रैंक को कहता है कि मिस्टर फ्रैंक बाकी टीचर्स की तरह अपने इमोशंस नहीं दिखाते और ना ही कभी स्टूडेंट्स को मारते हैं और ना ही वे ऐसे इंसान हैं जिन्हें दूसरों को दुख देकर प्लेजर मिलता हो। As they were deeply engaged in a conversation, Millie, Mrs. Crocker Harris, enters with a shopping bag. She asks Tuplo to go and play and come back in a quarter of an hour until Mr. Crocker Harris comes. She says that her husband has gone somewhere and it would take him quite some time to come back. If Mr. Crocker Harris, her husband, arrives earlier, she will take the blame. She further gives him a prescription and instructs him to purchase medicines for her from the chemist. Tuplo follows and go away to do the job. जब टप्लो और मिस्टर फ्रैंक अपनी बातचीत में डूबे होते हैं, उसी समय मिली, मिस्टर हैरिस की वाइफ, अपने शॉपिंग बैग के साथ प्रवेश करती हैं। वो टप्लो को जाने और खेलने के लिए कहती हैं। वो कहती हैं कि मिस्टर हैरिस को आने में अभी कुछ समय और लगेगा क्योंकि वो कहीं गए हुए हैं। उनके आने तक टप्लो खेल के वापस भी आ जाएगा और अगर मिस्टर हैरिस पहले आ जाते हैं तो वो सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेगी। वो टप्लो को प्रिस्क्रिप्शन देकर मेडिसिन्स लाने के लिए भेज देती है। मिसिस हैरिस एक काइंड लेडी हैं जो मेडिसिन लेने के बहाने टप्लो को भेजती हैं ताकि कुछ समय के लिए टप्लो जाए और खेले। उनको इस तरह से टप्लो का एक्स्ट्रा काम करना पसंद नहीं था। वो जानती थी कि मिस्टर हैरिस के डर की वजह से टप्लो तो जाएगा नहीं, इसलिए वो मेडिसिन लेने के बहाने उसको भेजती हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द प्ले वेल। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ।